explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 12 of grammar, and the name of the chapter is punctuation. Right? So, what are these punctuations? Punctuations are actually the pauses. Right? They refer to the pauses which we use while writing, while speaking, or while narrating something. Right? So let us read the chapter and know more about these punctuations. The right use of pauses in writing is called punctuation. So the time इन pauses को करेक्ट तरीके से यूज करना ही punctuation कहलाता है. Right? Now we have the punctuation marks over here. Let's see what are these punctuation marks. So they are full stop, comma, question mark, exclamation mark, semicolon, colon, inverted comma, apostrophe, hyphen, bracket, right? तो ये है हमारी 10 punctuation marks. Now, what are their uses? कि कैसे यूज किए जाते हैं? Let us read this in detail. So, the very first topic that we have over here is the full stop. So, why is full stop used? This is used at the end of the statements and after the abbreviated form of each word in abbreviation, right? ये यूज किया जाता है स्टेटमेंट्स के एंड में, राइट, आफ्टर द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ ईच वर्ड, ताकि हर वर्ड की एब्रीविएटेड फॉर्म जो है उसके आगे भी हम फुल स्टॉप लगा सके, राइट. जस्ट लाइक सेंटेंस के एंड में तो हम लगाते ही हैं फुल स्टॉप, राइट, टू शो दैट द सेंटेंस और द स्टेटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर, राइट. बट sometimes when we use the abbreviated forms, that means the short forms, right? Just like if I write info, which is the abbreviation of the word information. So wrote info and then I placed a stop after info, right? So this is how the full stop is being used. We have the comma. अब let's see comma जो है वो कैसे यूज किया जाता है. So this is used between different words, dates, or phrases that form single similar units. Also used before putting words in inverted commas when a direct speech is divided in two parts. तो comma है ये यूज किया जाता है अलग अलग वर्ड, डेट्स और phrases के बीच में, राइट. जस्ट लाइक इफ आई से एक ही कैटेगरी के बहुत सारे नाम हो, जस्ट लाइक बॉयज नेम, कुछ रमेश, सुरेश, मोहन, राइट. तो यू कैन से कि मैंने यहाँ पर नेम्स को अलग करने के लिए भी यहाँ पे कॉमा ओवर है, राइट, ताकि पता चल सके कि ये सेम कैटेगरी की हैं बट दे आर एक्चुअली द डिफरेंट वर्ड्स, राइट. तो यहाँ पर हम कॉमा का यूज करते हैं. और साथ ही कॉमा हम लोग तब भी यूज करते हैं जब एक सेंटेंस में हमें डायरेक्ट स्पीच को डिवाइड करना हो उसके दो पार्ट्स में, तब भी हम डायरेक्ट स्पीच से पहले कॉमा का यूज करते हैं, राइट. यूज ऑफ कॉमा. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन मार्क. अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्या यूज है? This is used at the end of a question. कि क्वेश्चन मार्क को हम क्वेश्चन के एंड में प्लेस करते हैं, राइट. जस्ट लाइक इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? के बाद obviously I will put a question mark because this is a question, right. Next we have the exclamation mark. तो अब ये exclamation mark क्या है, right? Let us see. So this is used at the end of the sentences
showing strong feelings of anger, surprise or wish, etc. तो ये एक्चुअली यूज किया जाता है सेंटेंस के एंड में जहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हो, राइट, वेदर इट इज ऑफ एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, सॉरो और व्हाटएवर, राइट। हमें वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क को प्लेस करते हैं। जैसे आगे पास से हुर्रा, वी वॉन द मैच, right? So after hurrah, I'll place an exclamation mark because this word is showing my happiness, my feeling, right? Next, coming up to the semicolon. So अब ये जो semicolon है, इसका क्या काम है? This is all used to show a pause greater than comma. तो semicolon का use हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें एक pause देना हो और एक थोड़ा लंबा pause, क्योंकि comma से थोड़ा ज्यादा हो, right? Also used to separate the clauses of a compound sentence if they have a comma. और ये sentences को separate करने के लिए भी use किया जाता है, right? Next, we have the colon. Now, what is this colon and how it is used? So, this is used to introduce a quotation with or with dash, right? तो ये कोटेशन जब भी हम लिखते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इन्वर्टेड कॉमास। तो अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं? दीज आर यूज्ड टू कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। तो जब भी हम स्पीकर की यानी किसी और ने कोई बात कही हो और उसे एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रहे हो, तब हम उन वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में वी हैव अपोस्ट्रोफे। तो अब ये अपोस्ट्रोफे कैसे यूज किया जाता है? दिस इज यूज्ड व्हेन टू वर्ड्स आर रिटन इन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म टू शो ओमिशन। तो ये जो अपोस्ट्रोफे है इसमें दो वर्ड्स लिखे होते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो कि अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं ताकि ओमिशन को क्रिएट किया जा सके, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, कैन नॉट can be written as can't, do not be written as don't, etc. It is also used to show possession, birds, girls, etc. राइट। तो ये यूज किया जाता है पोजेशन दिखाने के लिए, राइट। अपॉस्ट्रोफे एस का यूज हम शॉर्ट फॉर्म्स के बाद या फिर पोजेशंस दिखाने के लिए भी यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव हाइफन। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ हाइफन? So, this is used to join two or more words to form a compound word that is mother-in-law or father-in-law, right? तो जब हमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड वर्ड्स को ज्वाइन करना होता है तब वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स, और साथ ही हम उन कंपाउंड नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए एक हाइफन का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट का यूज कहाँ किया जाता है? दिस इज यूज्ड टू शो डाउट और टू एनक्लोज अ पैरेंथेसिस, राइट। जब भी हमें कहीं पर कोई डाउट होता है या फिर किसी कंक्लूजन को क्लियर करना होता है तब हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, राइट। So that was all about the chapter. Hope you all are clear with all the punctuation marks as well as their uses. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.